بے پناہ فضیلتیں آیا ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اس نبی کی بارگاہ میں پہچان بھی یہی ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان نبی کی بارگاہ میں کریں تو کس سے کریں؟ کوئی پہچان ہے ہمارے پاس؟ اس پہچان کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی صلی۔ ہم لوگ تو درود پاک پڑھتے نہیں، ابھی میں نے دیکھا کہ درود پاک یا تو لوگوں کو یاد نہیں، یا اگر یاد ہے تو کم پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ درود پاک کی پہچان کریں۔ علماء بیان فرماتے ہیں، صوفیہ نے بھی بات صوفیہ نے بیان کیا، درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو دکھاوے کے اندر سے بھی پڑھا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کربلا کی حقیقت سے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خود اسلم علیہ اجر، یہ محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ کچھ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے رشتہ داروں کے اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کرنا۔ اس محبت کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، وقت پڑنے پر اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان ان کو نثار کرے۔ یہ چیز اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو بچپن میں 3 چیزیں سکھاؤ۔ ہوتا ہے نا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کھانے پینے کی چیزوں کے نام گناتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ یہ بیٹا اس کو یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ جو ہے ABCD جو دنیاوی تعلیم ہے اس کی طرف ہم دادی کو رغبت دلاتے ہیں کہ تم اس کو پڑھو، تو بچے کو جو بتاتے ہیں وہ پڑھتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے اسی بچپن میں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز حب النبی کو، اپنے نبی کی محبت۔ اب نبی کی محبت کیسے سکھائیں گے؟ صرف یہ نہیں سکھاؤ کہ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ جن کی تعظیم اور عظمت، ان کا کیا مقام ہے، اس کو بتائیے۔ اس چیز کو آپ بتائیے کہ صرف ہم کلمہ پڑھ لیں مسلمان تو ہو جائیں گے، مگر ہم مومن کامل کیسے ہوں گے؟ جب شریعت متحرہ کے دامن کو مضبوط کریں تب ہم مسلمان ہوں گے۔ اور صرف کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے لے کہ کلمہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر کیا سب مسلمان ہی بن جائیں گے؟ نہیں، نبی کی محبت اپنے دل میں بسائیے، اور ایسی محبت کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے نبی کو اپنی جان زندہ باد۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ حب اہل بیت ہی، اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت میں حسنین کریمین کی تصویر، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ھذا ابنان، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا کی جو نسلیں چلتی ہیں وہ باپ سے چلا کرتی ہیں، مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک میرے خاندان کا ایک بچہ بھی دنیا میں رہے گا قیامت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل سبب ونسب ينقطع الا سبب، جتنے خاندان ہیں سب ختم ہو جائیں گے مگر میرا خاندان سے میرے قیامت۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آج ہم لوگ بڑے اس سے دور رہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ شاید کبھی جو ہے سال 2 سال کبھی قرآن کریم کھول کے پڑھ لیتے ہیں۔ باتیں میں تھوڑا کہہ رہا ہوں ادھر حقیقت یہ باتیں صحیح ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو شادیوں میں جو قرآن ملتا ہے وہ ہم لوگ صرف جو ہے ٹانکوں پر سجا کر کے رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے کب ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ آیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے جو ہے اللہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، میں
کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے، آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم ہوئے، عثمان غنی، مولا علی ہوئے، مولا علی کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کری۔ حالانکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دمشق میں حضرت فاروق اعظم کے دور سے وہاں پر آپ جو ہے گورنر مقرر تھے، اس لیے لوگ آپ کے چاہنے والے تھے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کرتا، لہذا حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ آپ خود گئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق، اور جانے کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کو کہا یہ خلافت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ نے اعلان کیا گئے لوگوں میں خلافت سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ آج کوئی کرے گا؟ آج تو حال یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے پنچایت کی جو ہے چناؤ ہوتا ہے اس کے لیے جہد ہو جاتی ہے، وہاں تو جو ہے اتنے بڑے مربع کے مالک ہونے کے لیے جو ہے حضرت حسن مجتبیٰ نے خلافت کو، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ مسند خلافت پر بیٹھے، آپ نے جو حکومت چلائی، اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا یزید مسند خلافت، مورخین نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو مسند خلافت پر بیٹھایا اور کہا کہ یزید تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں کا تو خیال ہے، ان کے ساتھ کچھ نے سلوک کرنا، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی جو ہے پاسداری رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صحابی کا نجوم ابھی اقتداء میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں جنہوں نے ان کی ابتدا کی ہدایت کی۔ لہذا ایک روایت میں یہ، دوسری روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو مسند خلافت پر بیٹھایا اور دعا کی کہ پروردگار اگر یزید کو مسند خلافت پر بیٹھنے سے نقصان واقع ہو تو اس کی خلافت کو برباد کر دینا۔ بہرحال جو بھی ہو، یزید مسند خلافت پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اتنا بڑا احتجاج جس کی لوگ کہتے ہیں کہ ہر فعل اس کے اندر موجود ہے، بندروں کو لگواتا تھا، جو ہے مجرے کرواتا تھا، شراب پیتا تھا، یہ سب اس کے اندر مسندیں تھی، اور جب مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے جانا سب سے پہلا کیا کام کیا کہ حضرت امام حسن کے پاس خط بھجوایا، وہاں کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ امام حسین سے بیٹھیں۔ جو ہے گورنر مدینہ نے امام حسین کو رات کی تاریکی میں بلایا، کہا کہ امام علی مقام لوگ اس وقت تاریکی میں سو رہے ہیں، مگر میں نے آپ کو اس رات کی تاریکی اس لیے بلایا ہے کہ یزید کا میرے پاس خط ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے۔ آپ نے کہا کہ اے گورنر مدینہ تجھ کو معلوم نہیں یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پر گر چکا ہے، اب یہ ہاتھ کسی فاجر کو فاجر کے ہاتھ میں زندہ باد۔ ایک دن بات ہوئی، دوسرے دن ہوئی، تیسرے دن ہوئی، جب تیسرے دن پھر یہی بات ہوئی وہاں پر مروان مرد اس نے کہا، جانتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ گرگٹ مروان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جہاں مروان نے کہا کہ اے گورنر مدینہ یہ وقت ہے ان سے بیعت لے لو یا قتل کر دو۔ آپ نے جب مروان کی طرف مڑ کر کے دیکھا ہے اس کا ہیبت تاری ہو جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مروان کیا تو اس بند کمرے میں مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جب ہمت ہو تو آپ میدان میں آ جائیں۔ مگر حضرت امام علی مقام کہتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ اپنے گھر گئے، اور جانے کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں اب مدینے کی زمین مجھ پر پہنچ یزید میری بیعت چاہتا ہے اور میں کسی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا بیعت کرنا یہ ایک دلیل ہو جائے گی کہ نواز رسول نے ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اور اگر میں نے یہ کر لیا تو پوری دنیا جو ہے پوری امت مسلمہ، اور کیونکہ رسول اللہ کا دین
मेरे लिए जो है अपनी जान को कुर्बान करके बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हज़रत इमाम हुसैन, आप कहते हैं कि सफर की तैयारी करो, लोग सफर की तैयारी करते हैं। हज़रत अब्बास बगदाद से कहा है कि अब्बास जो है तुम लिस्ट बना लो कि जिन लोगों को जाना है, जिन लोगों को मदीने में रखना। हज़रत इमाम हुसैन जब जाने लगते हैं, आप जा रहे हैं, तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा था, भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आपको सलाम करने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि भाई मैं भी अपने माँ फातिमा ज़हरा के खबरे मुबारक पर आखिरी सलाम करने के लिए जाना चाहती हूँ। आप लोग गए हैं। जब हज़रत इमाम अली मकाम अल्लाह के रसूल के रोज़े के सामने पहुंचे हैं और आपको हिचकियां बन जाती है, कहते हैं या रसूलल्लाह, एक वो दिन था कि जब आप मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, आज मदीने की जमीन आपके नवासे हुसैन पर तक। आप सोचिए तो सही कि हम लोग इस जगह हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग या किसी जगह रहते हैं, जब गांव से छोड़ करके हम लोग शहर कमाने के लिए जाते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर के रोते हैं कि हम लोग घर छोड़ करके कमाने के लिए जा रहे हैं। वो तो नवासे रसूल है, यही पैदा हुए हैं और इसी जगह को छोड़ना पड़ रहा है। आप जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं नाना जान जो है मदीने की जमीन हुसैन पर लोगों ने तंग कर दिया। या रसूलल्लाह, मैं मदीने में खून रेजी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मदीने को छोड़ करके मक्का की तरफ करना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर आप इतनी फरियाद कर रहे हैं। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपको बेहोशी हो जाती है, बाद ने लिखा है कि आपको ग़ुलूबगी आ जाती है। और देखते क्या है कि हज़रत जो है अल्लाह के रसूल के सानवी अज़हर पर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटा हुसैन, मैदान करबला का मंजर देखो, ये वो जगह है, यहाँ पर वो कत्ल होंगे, यहाँ पर वो शहीद होंगे। आप सब निशानियां बताते हैं। अल्लाह के रसूल से हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, ए नाना जान आप दुआ फरमा लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेटा अल्लाह तुमको सब रज़ा। उसके बाद आप अपनी अपनी जान की कब्र पर गए हैं, वहां पे सलाम किया है, दुआएं की हैं, आप जाने लगते हैं। आपकी बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब अपनी वालिदा के पायदी पैर है, पायदी पे हाथ रख के कहती है, अपनी जान जब जो है बेटियां रुखसत होती है तो माँ अपने दस्ते शब तक उनके हाथ में रखा करती है। ये अम्मी जान आज मैं जा रही हूँ, क्या ज़ैनब के सर पर आप अपनी चादर तकीर को न रखेंगी? क्या आप अपने दस्ते शफ़क़त को ज़ैनब के सर पर न रखेंगी? इतना कह रही है, कब्र मुबारक जुम्बिश करती है, आवाज आती है कब्र मुबारक से, कहे ज़ैनब अगर मैं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ क्या करके तुमको जो रुखसत करूँ, अपने हाथों से तुमको रुखसत करूँ, अगर मैं कब्र से बाहर आई, कब्र से बाहर आने की देर नहीं थी, क्या बताती हो जाएगी। लिहाजा शरीयत का बात जो है, शरीयत को भी लिहाज रखता है, लिहाजा जो है तुम जाओ। और यही नहीं, करबला के मैदान में सिर्फ मैं ही नहीं आऊंगी, नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी होंगे, और शेर खुदा लिखे मुर्तज़ा भी होंगे, मौला अली भी होंगे, फारूक आज़म भी होंगे, सब लोग वहां पर होंगे। बेटी रुखसत होती है, वहां से आप जब चली है, आने के बाद खेमे में आते हैं, खेमे में आने के बाद होता क्या है, लोग तैयारी हो रही है। हज़रत इमाम हुसैन अब्बास से कहते हैं, अब्बास लिस्ट सुनाओ कौन लोग जाने वाले हैं, सबके नाम गिनाए जा रहे हैं। उसी में एक बीमार खतरा है। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जो उनकी शादी हो गई थी इस वजह से नहीं गई। बाद लोगों ने लिखा है कि हज़रत जो उनको शिद्दत का बुखार था इसलिए नहीं गई, मगर बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन से आप कहते हैं कि बाबा जान सब लोग जा रहे हैं, हमारी बेटी जाऊंगी, सब लोग जब मदीना छोड़ रहे हैं, इसको भी साथ लेकर के चलिए। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटी तुम नहीं जा सकती हो। हज़रत अली अकबर से कहती हैं क्या मैं नहीं जाऊंगी, आप खामोश हैं। हज़रत अब्बास से कहती हैं, हज़रत कासिम से कहती है, हज़रत अली अस्कर की तरफ इशारा करती है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। हज़रत इमाम हुसैन से जब पूछा है तो आप कहते हैं कि नहीं बेटी सुहरा नहीं जा रही हो। कहते हैं क्यों? तो आप कहते हैं कि बाबा जान नहीं जा रही हो। बाद लोगों ने लिखा है कि आप कहती हैं कि बाबा जान अगर सवारियों की कमी है तो मैं पैदल चलूंगी। बाद लोगों ने लिखा है आप कहती हैं कि आखिरी बार हज़रत अली अस्कर को मेरी गोद में दे दीजिए ताकि मैं उनको प्यार कर लूँ, उनसे मोहब्बत कर लूँ। मगर कहते हैं लोग मुअर्रिखीन ने लिखा है आप अपने हाथ खींच लेती हैं, इतना शिद्दत का बुखार है। मगर हज़रत इमाम हुसैन से एक मुअर्रिख ने लिखा है कि कहती है कि बाबा आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती। आप फरमाते हैं कि बेटी सब्रा आज मैं सुनो वो चीज
मेरी शादी हुई थी और मैं जितना सालों हजार रोया करता था, दिनों रात में रोया करता था, मैं परेशान हाल रहता था। इतने में एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझको ज़ियारत होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुसैन क्यों रोते हो, क्यों इतना परेशान रहते हो, क्यों इतना बेचैन और बेकरार रहते हो? हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, जब मैं दूल्हा बना मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरे सामने नहीं थी, नाना मुस्तफा आप मेरे सामने नहीं थे, इसलिए मैं रो रही थी और मैं रो रहा था और मेरी आंसू बंद नहीं होते। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुसैन आखिर तुम किस चीज से खामोश हो गए, कौन सी चीज तुमको मिल जाएगी जिससे तुम खामोश हो गए? तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए रसूलुल्लाह, आप मेरी दो चीजों को पूरा फरमा दीजिए। एक ये कि जो मुझको पहला बेटा पैदा हो वो एकदम हम शबीह मुस्तफा हो, और दूसरा मुझको बेटी जो दीजिए वो हम शबीह फातिमा ज़हरा हो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब मुझको बेटा दिया हम शबीह पैगंबर मुझको अता फरमाया था, और बेटी फातिमा जब तुमको अल्लाह के रसूल ने जो है मुझको तुम पैदा हुई हो तो हम शबीह फातिमा, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम फातिमा ज़हरा कहते हैं। बेटी मैंने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी को मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। आप जो है कभी नंगे सर जो है आप बाहर नहीं निकली है, आसमान में कभी आपको जो है नंगे सर नहीं देखा है। इसलिए मेरी गैरत का सवाल नहीं हो रहा है कि फातिमा ज़हरा तुम तो जरूर हो, मगर झलक मेरी माँ की है, इसलिए मैं तुमको बहरहाल नबी की नवाज से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, कि हसन हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों को सरदार हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रिहान मिन दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। उनके बारे में वो इमाम हुसैन जिनके जो है बारे में आता है कि हजरत जिब्रील जंगल से जोड़े लेकर आया करते थे, अल्लाह के रसूल के कंधे मुबारक पर सवार होते थे। आज जब सवारी की जो है जब जरूरत होती थी, अल्लाह के रसूल को अपने जो है कंधे मुबारक पर सवार कर लिया करते थे। तो वो इमाम हुसैन है। आज मदीना छोड़ है, मक्का मुकर्रमा जब पहुंचे हैं तो लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और बहुत से सहाबा आपके इस्तकबाल किया है। आपने कहा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, हरम मुहतरम में जो है किसी का कोई कत्ल नहीं कर सकता है, यहाँ पे चींटी को मारने की इजाजत नहीं है, लिहाजा आप जब यहाँ आ गए हैं, आप अपने अमान में आ गए हैं, अब आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। मगर जब कुछ गुजरा है, जानते हैं कि हर शख्स के लोग दुश्मन हुआ करते हैं, और उस जमाने में तो पहले बैत के बहुत से लोग दुश्मन थे। लोगों ने यजीद के पास खबर भेज दिया कि यजीद तुम यहाँ इत्मीनान से बैठे हो, हजरत इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमा है और बड़े सुकून इत्मीनान से है। उसके बाद फिर वहाँ से जो है अभी आप वहाँ पर थे ही कि यजीदियों के जो है सूफियों के ठिकाने लगते हैं। सूफा वालों को जब याद किया जाता है तो उनको अच्छाई से नहीं याद किया जाता है, उनको दगाबाजी के हिसाब से याद किया जाता है कि सूफे वालों ने दगा किया था, इसलिए उनको उसी जब भी सूफे का नाम आता है तो दगाबाजों के गिनती में आता है। लिहाजा इससे पता ये चला कि आप लोग भी अगर किसी के साथ रहिए तो उसके साथ उसमें सलूक कीजिए, दगा मत कीजिए। इमाम हुसैन के पास लोगों ने खत भेजा, इमाम आप आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप आ जाइए, वरना हमको मजबूरन जो यजीद के हाथ पर बैत करना पड़ेगी। एक शख्स ये भी था कि अगर आप आज नहीं आए और हमको इमाम जो है यजीद के हाथ पर बैत करना पड़ी और मैदान महशर में अगर परवरदिगार ने पूछ लिया तो मैं कहूँगा कि यार परवरदिगार मैंने तेरे हबीब के नवासे को 150 भेजने की बजाय नहीं आए, इसलिए मुझको बैत करना पड़ी। अलमुख्तसर ये कि हज लोगों ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और बहुत से सहाबा ने कहा कि इमाम हुसैन आप इन सूफियों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने हजरत अली को शहीद किया, हजरत इमाम हसन मुजतबा को इन लोगों ने शहीद किया है, आप इन पर एतबार न कीजिए। अगर ऐसा ही है तो आप एक इस्लाम नुमाइंदा कीजिए। तो आपने हजरत मुस्लिम इब्न अकील को भेजा है। मुस्लिम इब्न अकील गए हैं तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, यहाँ पे फारूक साहब ने भी बयान किया कि जो दर्जों साहब के हाथ पर बैत करे थे। बाद लोगों ने लिखा कि 12,000 लोगों ने एक साथ बैत किया, बाद लोगों ने कहा कि 40,000 बैत किया। मगर जब बैत कर रहे थे तो
नौमान बिन बशीर मुहब्बत अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत रखता था, इसलिए उसने जब कोई जो मौदात गलत नहीं किया। आप बैठ करते गए, नमाज में हालत ये होता था कि पूरी मस्जिद हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भर जाया करती थी। मगर जो है जब यजीद को खबर दिया जो लोगों ने कि ऐ यजीद तू आराम से कूद बैठा हुआ है, वहाँ तेरे खिलाफ इमाम हुसैन का नायब बन करके कूफा में आ गया है और लोगों से बैत कर रहा है, तब वो बड़ा बेदार हुआ। उसने एक इंतखाब किया। किसका इंतखाब किया? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसके बारे में तारीख ने लिखा है कि एक समाज का बेटा था। बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि एक समाज का बेटा था। बहरहाल जो भी था वो आया है और आने के बाद जगह के साथ धोखे के साथ आता है और आने के बाद किस रास्ते से आया है? बसरा के रास्ते से नहीं आता है, आता है मदीने के रास्ते, मक्के के रास्ते से आता है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि इमाम हुसैन चल कर आ रहे हैं। क्योंकि हजरत मुस्लिम ने खत भेज दिया था, इमाम अली मकाम आप आ जाइए, यहाँ की जो है यहाँ का जो है लोग आपके बड़े मुआफिक है, लोग आपसे फेवर में है, आप आ जाइए। जब जो है वो जाता है, रात की तारीकी में गया है और लोग नारे लगा रहे हैं, उसके पीछे जो है लोग जो है 10-20 लोग थे और लोग जो थे वो समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं, लोग नारे लगाना शुरू करते हैं। जब वो जो है अंदर तो बड़ा खुश हो रहा था कि लोग इमाम अली मकाम मुझको समझ रहे हैं, इमाम हुसैन मुझको समझ रहे हैं। मगर वो जब वो जो है दारुल खिलाफत की तरफ जाता है, तो शक हुआ कि अगर इमाम हुसैन तो गवर्नर हाउस को जा रहे हैं, ये जो है इनको तो कहीं और आना चाहिए, हजरत हाली के घर आना चाहिए, जहाँ मुस्लिम अपने अपने रुके हुए हैं वहां पर आना चाहिए। ये जो है दारुल हुकूमत गुजर रहा है। उसके बाद जब अंदर गया है और जाने के बाद चेहरे से निकाब पहन जाता है, कहता है लोगों तुमको गलत फहमी हो गई है, मैं जो है इमाम हुसैन नहीं है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हूं और तुम लोग मुस्लिम इब्न अकील के हाथ से पैर छोड़ दो। बहरहाल ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो है वक्त काफी हो गया है। बहरहाल उसने क्या किया कि लोगों को कैद किया, लोगों को कत्ल किया। फिर हजरत मुस्लिम अपने अकील को मोहम्मद इब्न अशश जैसा शख्स जो कि जो है उसने आपके पहले जो है वार किया है, आपके होठ कट जाते हैं, आपको गिरफ्तार करके हजरत जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है जब वहां पहुंचे हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है मुस्लिम इब्न अकील तुम किस बात पर जो है जानना पूछते, तुमको मालूम नहीं कि मैं कितना बड़ा जालिम और जाबिर हूँ, तुमको मालूम नहीं है। आप उस वक्त कहते हैं कि लोगों सुनो, मेरी 2 वसीयतें हैं, उन चीजों को जो है तुम मेरी जो पूरी लोग जो है जा नहीं रहे हैं, लोगों को करीब नहीं जा रहा है। उस वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपने 2-3 वसीयतें की है। एक तो ये कहा कि मेरा 60,000 दिरहम कर्ज है, वो कर्ज अदा कर देना। दूसरा ये कि हमारे आली मकाम का खबर भिजवा देना, जो मैंने खबर दिया था वो गलत है, वो मक्का तशरीफ न ले आवे। तीसरी बात उसने ये कही थी कि मेरे 2 नन्हे बच्चे हैं, उनको मदीनतुल रसूल पहुंचवा देना। मगर जो है जब आपने ये कही है तो लोग मजाक उड़ाने लगे हैं और उसी हालत में आपने पानी मांगा है। आपने जब पानी मांगा है, आपने पानी को मुंह के करीब ले गए हैं, तो आपने जो है होठ का खून उसमें गिरता है, आप पानी फेंक देते हैं 2 से 3 मरतबा, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस खून में पानी गिर जाता है, जैसे पानी में खून गिर जाता है, वो पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जब तीसरा प्याला आपके पास गया है, आपने फेंक दिया है और आप कहते हैं अब मुझको हौज़े कौसर नाना रसूलुल्लाह के हाथों से जो पानी पीना है, इसलिए आपने पानी फेंका है, आपको शहीद कर दिया जाता है। हजरत मुस्लिम इब्न अकील के दोनों बच्चों को शहीद किया गया है। उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम जो कि मक्का से चल चुके हैं, रास्ते में मुलाकात किससे हुई है जानते हैं? हुर इब्न रियाही से मुलाकात हुई। कौन हुर इब्न रियाही है कि जिसको कि अल्लाह के हजरत इमाम हुसैन ने उन्हीं लश्करियों को आपने पानी पिलाया है। उन्हीं लश्करियों के पास जब पानी खत्म हो गया है, आपने अपने मशीसे का मुंह खोल दिया है कि लोगों को पानी पी ले। मगर हजरत इमाम अली मकाम से हुर ने कहा कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपने फरमाया कि हुर तुमको मालूम है मैं यहाँ इधर मुलाकात से नहीं आया हूँ। लोगों को 150 खतूत आपने जब उनके सामने फेंके हैं तो वो शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि इमाम अली मकाम इस रात की तारीकी में मैं अपनी फौज को दूसरे किनारे पर लेकर के रुकता हूँ। आप जो है अपनी फौज को लेकर के आप जहाँ चाहिए चले जाइए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कहते थे इमाम अली मकाम अपने लश्कर को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के पूरी रात चले हैं और चलने के बाद जब सुबह का वक्त होता है देखते हैं कि उसी मकाम पर मौजूद
मौजूद है। ये सब चीजें होती रही। आखिरकार 3 दिन तक हजरत इमाम अली मकाम भूखे प्यासे करबला के मैदान में रहे हैं। 7वीं मुहर्रम हरम को हुजूर इब्न रियाही ने आपको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद आप जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं, 9वीं मुहर्रम हराम है, यजीदियों ने कहलवाया था, आमिर इब्न साद ने कहा था, ऐ हुसैन इब्न अली तुम जो है यजीद की पैद कर लो। जानते हो जो है आमिर इब्न साद कौन है? साद इब्न अबी वक़ास का बेटा है, जो है साद इब्न वक़ास और सहाबी रसूल है। जब अल्लाह के रसूल पर तीर आते थे तो आप कभी दाएं हो जाते थे, कभी बाएं हो जाते थे, कभी आगे होते थे, कभी पीछे होते थे। या रसूल अल्लाह आप पर कोई तीर न लग जाए, इसलिए हज़रत साद इब्न वक़ास अपने सीने को लेने के लिए तैयार रहते थे। आज उनका बेटा जहन्नम की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया है और यजीद जैसे भटकाने के साथ जो है साथ देने के लिए तैयार हो गया है। उसने जो है इमाम हुसैन से कहा था, ऐ इमाम अली मकाम आप जो है यजीद की बैत कर लीजिए। आपने फरमाया है मेरे साथ उसको मालूम है मैं कौन हूँ? उसने कहा मुझको मालूम है आप कौन है। कहा कौन हो? कहा कि आप नबी के नवासे हैं। आपने फरमाया था कि यजीद को सुनो, क्या मैंने कभी जो झूठ बोला? लोगों ने कहा था नहीं। कहा क्या कभी मैंने अमानत पर खयानत की? कहा नहीं। क्या कहा गया कभी कहने मैंने किसी का हक मारा? लोगों ने कहा नहीं। कहा कि फिर क्या मसला है जब मैंने कुछ नहीं किया है और मैं जो है तुमको मुझको अपने जो है नाना की शरीयत पर तुमको मुझको मुस्तहकम पाया है, मुझको जो है एकदम मजबूती से जब मुझ पर कायम हो गए हो। लोगों ने कहा था कि सिर्फ आपका कसूर ये है कि आप यजीद की पैद नहीं कर रहे हैं। तो आपने फरमाया था कि ये सुन लो, ये हुसैन इब्न अली है, ये नबी का नवासा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक को जो है उनके ज़माने मुबारक को इस हुसैन इब्न अली ने चूमा है, चूसा है और जो है इस हाथ को मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर दिया है। यह हाथ पूरी जो है पूरी नस्ल मेरी कुर्बान हो जाएगी, मगर हुसैन इब्न अली यजीद के हाथ पर पास जो है बैत नहीं कर सकता है। लिहाजा यजीदियों 9वीं मुहर्रम हराम है, आज रात आशूरे की लग गई है। आज के दिन परवरदिगार की बारगाह में जो गिरजा वसारी करने दो, अल्लाह की बारगाह में इबादत दो, रियाजत करने दे दो, कल की रात में जंग करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उस रात में जानते हैं इमाम अली मकाम ने अपने साथियों से कहा था, ऐ मेरे साथियों तुम लोगों को मालूम है यहाँ जो लोग असगर के प्यासे नहीं है, असगर के प्यासे नहीं है, कासिम के प्यासे नहीं है, अब्बास नंबरदार के प्यासे नहीं है और मोहम्मद के प्यासे नहीं है, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरा सिर्फ खून चाहते हैं। लिहाजा इस रात की तारीकी में तुम लोग मुझको छोड़ करके चले जाओ। मैं गवाही देता हूँ जाने महशर में मैं अपने नबी से कह करके तुम लोगों को शफाअत करवाऊंगा और मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में तुम्हारे में तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगा, अगर तुम लोग चले जाओ। आप लोगों ने कहा कि ऐ इमाम अली मकाम ये कैसे हो सकता है कि हम आपके साथ मदीना से चल करके मक्का से चल करके घर बड़े मोहल्ला आ गए हैं। इमाम अली मकाम हम इतने बेगारत नहीं है, हमारा ज़मीर इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको छोड़ करके जाएंगे। इमाम अली मकाम ये जाने कुर्बान हो जाएंगी, हम अपनी औलादों को कुर्बान कर देंगे, मगर आपके दीन आपको जो कुर्बान आपने नहीं देंगे, हमारी गर्दन चलेगी, फिर आपके बारे में फंसा सकते हैं। इमाम अली मकाम ने सोचा कि शायद इन लोगों को ये हो कि जो है चिराग चल रहा है, इसलिए ये लोग छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। आपने कहा हज़रत अब्बास से कहा है या कि शायद हज़रत अली अकबर से कहा है कि चिराग को बुझा दो। जब चिराग बुझाया गया है कि रात की तारीकी में लोग चले जाएंगे, सामने जाने में शायद टकरा रहे होंगे, मगर जब चिराग बुझाया गया है उसके बाद जो है आज जब चिराग चलता है देखते क्या है कि सब लोग वहीं पर मौजूद हैं, कोई अपनी जगह से हिला नहीं है। लोगों ने कहा था ऐ इमाम अली मकाम या इमाम रसूलुल्लाह ये जाने कुर्बान हो सकती है, मगर हम लोगों के कदम पीछे नहीं है। और एक चीज मैं एक चीज बताऊं कि हर वो हुसैनी जिसके दिल में इमाम अली मकाम की मोहब्बत होगी, अगर जिक्र करबला होगा आंखें अश्कबार हो जाएंगी, और जिसकी आंखें अश्कबार ना हो वो समझ ले कि दिल हुसैन की मोहब्बत दिल में इमाम हुसैन की अली मकाम की मोहब्बत नहीं है। लिहाजा इस दिलों में अपने नबी की और अपने नबी की नमाजों की मोहब्बत जमा करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। बस मैं अपने तकरीर को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी आशूरे मुहर्रम नहीं आया है, लिहाजा मैं इतनी बातों पर इतनी बात पर अपनी तकरीर का खत्म करता हूँ। मगर मेरा एक चीज आप लोगों से कहना है कि आप लोग जितनी जो है खुशी के साथ दिल जमाई के साथ आप जिक्र हुसैन मनाते हैं, आप उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जिक्र हुसैन के महफिल सजा लेना और नमाज न पढ़ना
یہ امام حسین سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ سوچئے، پوچھئے مورخین سے، تاریخوں میں لکھا ہوا، جو علماء بتائیں گے اس میدان کربلا میں بھی امام علی مقام نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی، اور یہ ذہن میں تھا، اے امت محمدیہ، کبھی کوئی اگر مصیبت کا بھی وقت آ جائے جان قربان کر دینا مگر اپنی نمازوں کو مت چھوڑنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو امام علی مقام کی سچی اور اس کی سچی پکی محبت عطا فرما دے، اور وہی محبت لے کر قبر میں جائے اور آخرت میں یہی محبت سلامت رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و